اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی سے کام مت لو، تاکہ میں تمہیں نصیحت کروں جو تمہارا مجھ پر حق ہے اور تم پر حجت تمام کر دوں۔ بس اگر تم انصاف سے کام لو تو فلاح پا سکتے ہو۔ بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، جفا کے تیر کھائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، بٹھاتے تھے نبی کاندھوں پہ جن کو، وہ نیزوں سے گرائے جا رہے ہیں، بلا کے غم اٹھائے جا رہے ہیں۔ أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما يحق لكم عليه وحتى أعذر إليكم، تمہیں کچھ سنائی دے رہا ہے؟ فإن أعطيتموني ضرورت کی حد تک۔ بذلك أسعد، تو یہ سب بعد میں لکھو گے؟ اس حد سے تمہاری ضرورت کی حد کہاں تک ہے؟ فأجمعوا رأيكم، سننے دو گے؟ میں سمجھتا تھا کہ ایسی گفتگو تم لوگوں کے لیے معمول کی بات ہے۔ ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إليه ولا تنظرون، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، فانظروا هل يصلح لكم قتلي وانتهاك حرمتي. ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين المصدق لرسول الله ان الفاظ کو بما جاء به من، سننے کے لیے ہمیشہ ظرف چاہیے جو ان لوگوں میں بالکل بھی موجود نہیں۔ أوليس حمزة سيد الشهداء، تمہاری باتیں مرموز ہیں۔ أوليس جعفر الطيار، حقیقت مرموز ہے۔ حسین کے ساتھ ہو، اگر حسین کے ساتھ ہوتا تو ابن سعد کے خیموں میں پھر رہا ہوتا۔ یعنی تمہاری زبان اور دل ایک نہیں؟ کیا ممکن نہیں کہ حق کی بات کرو، حق کا ساتھ نہ دو؟ والله ما تعمدت كذبا منذ علمت دراصل یہ بات ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ حقیقت اس طرف بالکل بھی نہیں۔ إن كذبتموني اور تم فيكم، بل لو سألت میں اس اشتیاق کے ساتھ اس طرف کے امیر کی باتوں کو سننا؟ تم کیا کہتے ہو؟ میں ایک چرواہا ہوں اور غلطی سے اس جنگ میں پہنچ گیا ہوں۔ خود کو چرواہے سے سپاہی نہیں بناؤں گا، چاہے حق کا سورج دونوں میں سے جس طرف سے بھی ابھرے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ وزيد
زيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم اب تم ہی بتاؤ کس طرف سے ابھرا ہے یہ سورج؟ صلى الله عليه دیکھ نہیں رہے؟ وسلم لي ولكم حسین کے الفاظ تم جیسے سفید ریش کے لیے شناسا ہونے چاہیے. پیغمبر بھی جب ما في هذا حاجز لكم کلام وہی بیان کیا کرتے تھے تو بہت کم لوگ سنتے تھے، اور آج حسین کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے. إن كنتم في شك تمہارا دل متزلزل ہے؟ أفتشكون متزلزل دل اس جنگ میں کسی کام کا نہیں ہے. آج کے دن حق کو مرد میدان کی ضرورت ہے اور بے نیام تلوار کی. فوالله میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ رہے ہو؟ والمغرب ابن بنت نبي غيري تمہاری زبان تلوار سے کم نہیں. ولا تم کیوں پریشان ہو؟ ويحكم أتطلبوني بقتيل منكم قتلت تم جیسا بے باک چرواہا آج تک نہیں دیکھا. أو مال لكم استحق جنگ میں دونوں طرف سے کسی کا احسان مند نہیں ہوں. أو بقصاص جراحة خوف احسان مندوں کا مقدر ہے. يا شباب تمہارے تانے اب تک ختم نہیں ہوئے؟ يا حجار ہر تانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، میرا کوئی مقصد نہیں. يا قيس بن تمہاری پریشانی میں ختم کرتا ہوں. يا زيد بن مرحوم خلیفہ کی جو میں نے بیعت کی تھی وہ ألم تكن اب تک قائم ہے. أينعت الدماء میرے عقیدے کے خیمے کا ستون وہی بیعت ہے. واخضر الجنان اس طرف کے طوفانوں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. لا تقدم على اچھا شکار نہیں ہوں میں تمہارے لیے. شکار؟ امی حسن کچھ کھاؤ گی نہیں؟ نہیں کیا یہاں دیوانوں کو سوکھی روٹی کھلائی جاتی ہے؟ تم آخر واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ کیا حسن آیا ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے. خدا ہی جانتا ہے کیا راز ہے تم لوگوں کے درمیان. جنگ کے میدان کو کبھی بھی مت چھوڑنا حسن بیٹا. رک جاؤ، اپنی زندگی کو حق کے تابع کر لو. نہیں جانتی تھی کہ یہ سب حسین کے مقابلے میں آ جائیں گے. اس کے خون کے پیاسے ہیں. کیا چاہتے ہو؟ کاش میں حسن ہوتا اور اس کے دل کی بے چینی کو کم کر سکتا. تمہاری اپنی ماں نہیں ہے کیا؟ ایک فرشتہ صفت ماں ہے جس کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہوں. پھر کیوں کہا؟ اس بوڑھی عورت کی فریاد پتھر کو بھی ریزہ ریزہ کر دے. میں کیا چیز ہوں؟ پھر یہاں کس لیے آئے ہو؟ ویسے آپ ہی بتائیں کہ لوگ کھانے کے خیمے کی طرف کس لیے آتے ہیں؟ کھانا کاتبوں کے لیے ہے، نہ کہ چرواہوں کے لیے. کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہاں کے آداب و رسوم میں نہیں؟ سوکھی روٹی کی وجہ؟ یہ روٹی وہ لڑکی اپنے ساتھ لائی ہے اور یہاں کے کھانے کو خود پر حرام سمجھتی ہے. یہاں کا کھانا حرام ہے، حرام. یہ لڑکی دل کی بری نہیں. تم یہیں رہنا، اس بیابان سے مت جانا. لباس جنگ پہنو. نہیں جانتے یہ سب دیکھ رہے ہیں. مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہارے لیے پریشان ہوں. حسن جان، اس کی بدحواسی سے لطف اٹھا رہے ہو؟ میرے پیارے بیٹے. یہ عورت کھجوریں نہیں کھاتی کیا؟ اس کی بات چھوڑ دو. تم بھی نہیں کھاتی؟ اس لشکر کی کھجوریں تمہارے گلے سے نیچے نہیں اترتی. تفتیش کر رہے ہو؟ میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کی سوکھی روٹی کو بیت المال کی کھجور پر ترجیح دیتا تھا. تو تم اس کو جانتے ہو؟ اس کو کون نہیں جانتا؟ تم سب تو اس کے بیٹے کے خلاف کھڑے ہو. تم بھی تو اسی لشکر میں شامل ہو. تلوار چلا رہی ہوں. میں نے جنگی لباس پہنا ہے.
ऐसे बहुत कम होंगे जो चरवाहे के लिबास में गुमनाम सिपाही बनना चाहते हो। इब्ने सबीह, उसके बारे में कुछ जानती हो? अगर मेरी आवाज बुलंद हुई तो तुम्हारी जिंदगी की कोई जमानत नहीं। तुम अभी तक यही हो? उनमें से एक गया है मेरी रकम वसूल करने। ये कैसी आवाज है? कहीं जंग शुरू हो गई है। लश्कर में हंगामा। ये शोर क्यों मचा रहे हैं? ताकि हुसैन की आवाज ना आए। कैसे पत्थर दिल है ये लश्कर वाले। ये शोर शराबा इन्हीं की तरफ से है। हुसैन की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। अफसोस है इन पर। अपने खैमों की तरफ चले गए। अली और औलादे अली का शिवा है कि जंग से पहले इत्तिमाम हुज्जत करना। आज का दिन जंग का दिन है। इसमें कोई शक है क्या? मेरा दिल घबरा रहा है। इस हजारों के लश्कर के होते हुए कोई तुम्हारे खैमे तक नहीं पहुंच सकता। मेरे लिए रसूलुल्लाह की औलाद के मुकाबले में खड़ा होना मुश्किल है। किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसा नहीं है। तुम किस तरफ हो? माँ की तरफ। मैंने माँ का इंतखाब किया है जो मेरी मुंतज़िर है। इन दोनों में से किसी की तरफ नहीं मैं। अक्लमंदी का फैसला है। मैं अगर यहाँ से जिंदा बचकर कूफा पहुंच भी जाऊं, मुझे ये लोग कभी भी सुख का सांस भी लेने नहीं देंगे। फिर यहीं ठहरने का इंतखाब करो। اشهدوا لي عند الأمير أنني أول من رمى. ये कौन था? उमर इब्ने साद। जंग का आगाज। ऐ मुस्लिमों की मददगार, तेरा ही आसरा। या अल्लाह, हजारों की तादाद में तीर। क्या हुसैन के खैमों पर गिरे? उनके सिपाहियों के सीने में उतर गए। हुसैन के जानिसार जमीन पर गिर रहे हैं। उठ खड़े होंगे। हर कोई अपनी साथ में एक लश्कर है। अगर दोबारा ऐसे ही तीर चलाए जाते रहे तो फिर जंग तो यही खत्म हो जाएगी। अब उन लोगों ने कमाने नीचे रखकर सबने तलवारें उठा ली हैं। कूफा और शाम के सिपाही आहिस्ता आहिस्ता इनकी जानें लेंगे। क्यों? पुरानी दुश्मनी। कयामत तक दिलों से नहीं निकलेगी। उस सरकश ऊंट से पत्थर है जो बेखबर है, नहीं जानता कि कहां से सैराब हो रहा है, खून बहा रहा है या जान दे रहा है। ये जंग भी आज न जाने कितनों का खून बहाएगी जमीन पर। किस बात का डर है जो तुम इस तरह भाग रहे हो? चेहरा क्यों ढापा हुआ है? मुझे क्यों रोक रहे हो? अपना नाम बताओ। मेरे नाम का क्या करना है? मुझे छोड़ दो। मेरी सादत की राह में रुकावट ना बनो। तुम्हें उस शख्स का खौफ है जिसे तुम्हारे पीछे भेजा था? क्या कह रहे हो? मेरा नाम उर्वा है। जंग तो अभी अभी शुरू हुई है और सिपाही खैमों के पीछे से जंग के खौफ से भाग रहा है। बताओ कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मेरा ख्याल है तुम वही हो जिसकी मैं तलाश में हूं। रुकावट ना बनो। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें नहीं जानता और जंग से फरार नहीं हो रहा। मेरे साथ आओ, कोई गवाही दे तुम्हारी। तुमने क्या नाम बताया था? उर्वा? मुझे देर हो रही है। तुम्हें तुम्हारे प्यारों की कसम, मुझे छोड़ दो। जरा गौर से देखो, मैं सफ़ान का बेटा हूं, मुझे नहीं जानते? मैं भी तुम्हें तुम्हारे प्यारों की कसम देता हूं, सच बोलो, तुम इब्ने सबीह नहीं हो। बताया तो है मैं उर्वा हूँ। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। फिर तुम फरार क्यों हो रहे अपने हो? मालिक के लिए। अपने साथियों को बता देना कि हुर का गुलाम अपने मालिक के पास गया है। फिर तुम सुबह ही हुर के साथ हुसैन की तरफ क्यों नहीं गए?
जब तीरों की बारिश बरसी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि हुसैन जैसा अमीर तन्हा हो। कहना कि उर्वा ने अपनी जान का सौदा इश्क हुसैन से किया है, माल दुनिया से नहीं। ये वाकई चरवाहा है? हमें इससे क्या? हक और हकीकत की बात कर रहा था। किस तरफ है पता नहीं। इब्ने ज़ियाद के लश्कर में हुसैन के लिए आहें भरता है। अपनी कोई बात नहीं बताता, ना जंगी लिबास पहनता है, ना ही कोई वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है। उसकी बातें भी एक देहाती चरवाहे जैसी नहीं। थोड़ा मशकूक नहीं लगता तुम्हें? तुमने कोई राज की बात तो नहीं कहती? उस अजनबी चरवाहे से? एक सहमत का शौरत जब राज बताने पर आए तो अपना यह गैर नहीं देखती। तुम अपनी फिक्र करो, कहीं उसके सामने दिल का राज ना कह देना। हम बदनसीब जंग में खाना पकाने वाले हैं, जासूसी करने वाले नहीं। खुद को ज्यादा ना उलझाओ, काम बहुत है। कहाँ खोए हो चरवाहे? कभी दो लश्करों में तादाद का इस कदर फर्क नहीं देखा। तीरों की बारिश ने फर्क और ज्यादा कर दिया। इस बयाबान के रोशन दिन को तीरों ने रात में तब्दील कर दिया। दिन का आगाज खून बहाने से हुआ, आज की शाम से अल्लाह की पनाह। हुसैन के कई साथी तीरों की इज्जत में आ गए। तकरीबन 50 लोग। इससे ज्यादा नहीं थे? नामों की फहरस्त मुकम्मल हो जाए तो तादाद भी वाज़ेह हो जाएगी। तीर खाकर भी गिरते संभलते। हुसैन के लिए दोबारा उठते थे और जंग लड़ते थे। लगता है उन लोगों के बदन में खून से बढ़कर कुछ है। क्या ये सब भी लिखा है तुमने? वो मौजज़ा जो उनकी रगों में है, शायद मैं बाद में लिखूं। मेरा काम हकीकत लिखना है, अपने जज्बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि इस तहरीर में मारे जाने वालों के नाम लिखे हैं तुमने? अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर्रब अंसारी खिजरजी भी हुसैन के लश्कर में शामिल था। उसको जानते हो? रोहबा में गदीर के गवाहों में से था। कैसे चरवाहे हो कि पढ़ना भी जानते हो? किनान इब्ने अतीक तगलिबी। इसका मतलब खलीफा के दुश्मनों को खूब पहचानते हो। दुश्मन की पहचान जरूरी है निजात के लिए। किनान इब्ने अतीक तगलिबी बनी उमैया से शदीद दुश्मनी रखता था। अपने बाप के हमरा गज़वाए ओहद और खैबर में शरीक था। जंग जमल, सिफ़ीन और नहरवान में भी अली को छोड़कर नहीं गया। वो कल ही करबला पहुंचा है। वो कैसे कूफा से फरार होकर करबला पहुंचा? वैसे ही जैसे हबीब इब्ने मज़ाहिर और मुस्लिम इब्ने उसूजा हुसैन के लश्कर में शामिल हुए। अबू शुजा तुम्हारे सिक्के अभी तक नहीं लाया? शायद उसे मैदान में रुकना पड़ गया। कोई नई खबर है अबू नुमान? सुना है हुर के बास करीबी अफराद भी हुसैन के लश्कर में चले गए। भाग गए हैं या हुसैन के लश्कर में शामिल हुए हैं? तीरों की बारिश शुरू होने के बाद वो कहीं नजर नहीं आए। शायद अबू अजीज को मालूम हो। हुसैन की तरफ गए हैं। कैसे जानते हो? मैंने उनमें से एक को हुसैन की तरफ जाते हुए देखा।
किस वक्त? तुलुए आफ्ताब के वक्त। तो उसको रोका क्यों नहीं? रोक नहीं पाया। कम अज कम शोर मचा देते ताकि कोई सिपाही वहां पहुंच जाता और उसके हाथ पांव बांध देता। कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। रोक नहीं सकता था या रोकना नहीं चाहता था? एक जिस्म था जो शिद्दत के साथ अपनी रूह से विसाल चाहता था। अपनी रूह से विसाल और हुर की गुलामी में? हुसैन के खैमों में। गुलाम अपने मालिक का ताबे होता है। गुलाम मालिक के बगैर आखिर क्यों कर रहेगा? तो आपके कहने का मतलब यह है कि वो हुर की गुलामी के लिए वहां गया? बेशक। इस शख्स को देखो, अपने खून के आखिरी कतरे तक अबू शुजा का वफादार है। वो गुलाम इससे मुख्तलिफ था। गुलाम तो था लेकिन हुसैन का, हुर का नहीं। देखो अबू राफे, ये चरवाहा होने के अलावा शायर भी है। अजीब है कि कोई शख्स मैदान जंग में हारने वाले लश्कर में शामिल होने के लिए इतना बेचैन हो। जल्दी से ये भी तहरीर करो अबू राफे कि उर्वा, हुर का गुलाम, दुश्मन के लश्कर में शामिल हो गया है। ये क्या कह रहा है अबू नोमान? इसके जिगर में इस बयाबान से ज्यादा तशनगी है। फुरात से इसके दहन तक पानी का एक रास्ता बनाना चाहिए। खुद पानी लेने के लिए क्यों नहीं जाता? अबू शुजा का हुक्म है कि कयामत भी आ जाए तब भी संदूक से दूर नहीं होना। वैसे अम्मारा कहाँ है? इसको कहां से लाए हो? इसे अबू शुजा लाया है। कहता है फतूहात इस्लाम में कहीं से गनीमत में मिला है। अरब है? अगर अरब होता तो इस सहरा की गर्मी में इतना बेताब ना होता। कहाँ का है? लानत हो तुम पर अमारा। अब क्या पानी लेने मैं खुद जाऊं? इसको वाकई सुनाई नहीं देता। जंग जारी है, रुकना मुनासिब नहीं है। अबू अजीज वहां अकेला है। मेरे सिक्के लाए हो? तुम्हारा नाम क्या था? हातिम। जनाबे हातिम, चरवाहा कल दोपहर में आकर अपनी 20 भेड़ों की रकम लेकर गया। यकीनन आप किसी और काम से आए हैं। अपने आने के असल मकसद को आप बयान फरमाइए। जनाब, मुझे शक हुआ था कि आखिर क्यों कोई चरवाहा कातिबों के खेमे से अपने सिक्के लेने के लिए आएगा। डरो मत। मैं तुम्हारे लिए एक खबर लेकर आया हूं। बस आप अमीर के सामने मेरी इज्जत का ख्याल रखिएगा। अमीर के सामने तुम्हारी इज्जत रखूं? अमीर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। बहुत मुश्किल काम है अमीर के लिए जासूसी करना। जानता हूं कि इस हकीकत को छुपाना आपका फर्ज है। खेमे से बाहर आया हूं ताकि आपका राज फाश ना हो। परेशान मत हो, अबू शुजा अपना मुंह बंद रखेगा, बिल्कुल उस संदूक पर लगे ताले की तरह। सिर्फ तुम्हें ही पता चला है? मैं आपके काम में रुकावट हरगिज नहीं बनूंगा। आप अबू शुजा की वफादारी का इम्तिहान लेना चाहते थे। मैं खलीफा की अमानत में खयानत करने का सोच भी नहीं सकता हूं। बताइए, कामयाब हुआ हूं मैं? हाँ बिल्कुल, खाइन नहीं हो। खुदाया तेरा शुक्र है कि तूने मुझ पर एहसान किया और मैं शैतान के वसवसे में नहीं पड़ा। यही वजह है कि मैं इब्ने साद का एतमाद याफ्ता हूं। ऐसे संदूक हर किसी के हवाले नहीं किए जाते। ये बताओ कि ये अमानत कब तक तुम्हारे पास है? कल शिमर एक पैगाम लेकर आया है। अमीर का हुक्म है कि लश्कर में से एक गुरोह
हुसैन पर घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार रहे। उसी नाल की बात कर रहे हो जो फजर के बाद यहां पहुंचे? वो इसी मकसद के लिए थे? हाँ, जो भी लोग हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाएंगे उन्हें उन सिक्कों से नवाजा जाएगा। आखिर ऐसा करने की क्या जरूरत है? अमीर के हुक्म की अतात और खलीफा के तकर्रुब की खातिर। किसी ने अपना नाम दिया है? एक बार हुसैन का काम तमाम हो जाए फिर ऐलान करेंगे। अगर कोई इसके लिए राजी ना हुआ तो? फिर ये काम मैं अकेले ही अंजाम दूंगा। घोड़ों की नाल को अपने घर के दरवाजे पर तबरुकन आवेजा कर दूंगा। सलाम हो सरदार अबू शुजा पर। क्या कहा है? कोई काम था जिसे अंजाम देना है। अबू शुजा के साथ जो खड़ा है उसने तो कुछ नहीं पूछा। उसी चरवाहे का कह रही हो? वो चरवाहा नहीं है। तुमसे किसने कहा है? तुमने ही कहा था कि चरवाहे को लेकर गए हैं ताकि वो अपनी भीड़ों की रकम वसूल कर ले। वो चरवाहा यही था? नहीं जानता, शायद वही हो। इसका काम तमाम कर दो। मार डालूं मैं? मेरा ख्याल है कि वो मेरे बाप को कत्ल करना चाहता है। कैसे कह सकती हो? दलील मांग रहे हो? तुम्हारा कहना ही काफी है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। बहादुरी और दिलेरी फकत ज़रा पहन लेने से नहीं आती। अपनी जान हथेली पे रखो और तलवार उठाओ। अगर बुज़दिल होता तो आज यहाँ पर नहीं होता मैं। लेकिन तुम किस बात पर इतनी मुतमईन हो कि उसे कत्ल करवाना चाहती हो? तुम्हारे सरदार से पता चला। अबू शुजा? मैंने खुद सुना है कि वो खलीफा की तरफ से जासूसी पर मामूर है। जनाब हातिम, जरा इस नाल की चमक दमक को तो देखिए। मैंने खास खुद कहकर ऐसे बनवाए हैं ताकि इन नालों के साथ घोड़े दौड़ें दीन से खारिज होने वालों पर। अगर आज इस सरकशी को इबरत का निशान न बनाया तो इस्लाम अपनी अजमत के साथ बाकी नहीं रहेगा। और कल कोई भी सहरा नशी जिसकी कोई औकात नहीं, सरकश ऊंट की तरह दीन की बुनियादों पर चढ़ दौड़ेगा। अगर वो दीन से खारिज आले रसूल हो तो? ये तो फिर उससे भी बदतर है। खुदाए वाहिद कुरान में फरमाता है, हजरत नूह का बेटा था और वो नाखलफ था। तुम्हारा कयास यहां पर गलत है। वो क्यों? खुदा ने नूह के बेटे की नाखलफी को अपनी नाफरमानी के साथ मशरूत किया है। हुसैन ने खुदा के किस हुक्म की खिलाफ वर्जी की है? मेरे अकीदे को आप परख रहे हैं? अपने दिल के खंडर से अकीदे को बाहर निकालो और खाक झाड़ कर देखो। अगर सालिम नहीं है तो फिर अफसोस का मुकाम है। खुदा और खलीफा के हुक्म में क्या फर्क है? हुसैन ने खलीफा का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। मैंने कुरान में कहीं भी नूह के बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ाने का हुक्म नहीं देखा। इस बारे में तो खलीफा ही बेहतर जानता है। जनाब हातिम, मेरी अक्ल बस यहीं तक मेरे साथ है। ये फिर इबरत के लिए होगा। ये खेमा भी यकीनन इस काम को अंजाम देने के लिए है। बेशक। इस बार भी मैं कामयाब हुआ हूं। लश्कर में शोर शराबा है। अच्छा हुआ कि वो चला गया। इब्ने सबी कहीं मिला? गर्मी है, बहुत बहुत गर्मी है। लश्कर में नहीं था? क्या उसे ढूंढ लिया?